हाँ जी बच्चों, जिस तरह आप 10th क्लास का चैप्टर 14 शुरू किया है स्टैटिस्टिक्स। सब तो पहला ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੇਜਰਸ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਭੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੀਨ, ਮੀਡੀਅਨ, ਮੋਡ, ਮੱਧਮਾ, ਮੱਧਿਕਾ, ਬਹੁਲਕ, ਕਿਸ ਨਾਲ x ਬਾਰ ਨਾਲ m ਦੇ ਨਾਲ z ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1 2 3 4 ਜਾਂ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਰॉ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਰॉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਚਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਲੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲਾ 1 5 7 9 13 ਜਾਂ 17। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰॉ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। दूसरे नंबर पे ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਅਨਗਰੁੱਪਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਉਹ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੰਡ ਸਾਰਣੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੰਡ ਸਾਰਣੀ। ਨੰਬਰ 2 ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 5 7 9 13 17। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ 1 ਰੁਪਏ ਹਨ ਕਿ 1 ਰੁਪਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹਨ? 2 ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ। 7 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹਨ? 1 ਕੋਲ। 9 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ? 8 ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ। 13 ਰੁਪਏ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ। 17 ਰੁਪਏ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ x ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ f, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 3। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਵੰਡ ਸਾਰਣੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਤੋਂ 10 10 ਤੋਂ 20 20 ਤੋਂ 30। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਤਲਬ 0 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜੋੜੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 5, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6, ਫਿਰ 7। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਪ 4 ਕਮਿਊਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੰਡ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੰਡ ਸਾਰਣੀ। ਨੰਬਰ 5 ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਫਿਰ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ, 20 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ f ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 3 ਜਾਂ 4। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੰਡ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੰਡ ਸਾਰਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ, 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੰਡ ਸਾਰਣੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 6। 6 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਤੀ ਵਿਆਪੀ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨੋਨ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਅਣਅਤੀ ਵਿਆਪੀ। 5 ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 0 ਤੋਂ 10 11 ਤੋਂ 20 21 ਤੋਂ 30
इस तरह के जो सीरीज साढ़े को लिखी होंगी। देखो इतने 10 नहीं है, इतों 10 तो नहीं शुरू हो रहा, 11 तो शुरू है, 20 से खत्म हो रहा, 21 तो शुरू हो रहा, मतलब जिथे खत्म हो रही है सीरीज उस तो अगले नंबर तो साढ़े को जी सीरीज आगे शुरू होंगी है। साढ़े को उस तरह फ्रीकुएंसी 5 7 4 कुछ भी दी हो सकती है। ये साढ़े को किया जाते हैं इनकलूसिव, ओवरलैपिंग या फिर अतिव्यापी सीरीज जी साढ़े को आदि हैं। फिर साढ़े को आता है नंबर 6 एक्सक्लूसिव सीरीज या अण अतिव्यापी। 20 तो 29, 29 तो 29, 29 तो 30, 30 तो 39, 39 तो 40, 4 3 2 1 इस तरह साढ़े को फ्रीकुएंसी दी होंगी है। ये देखो 29 से खत्म हुई, 29 से शुरू हो गई, 30 से खत्म हुई, 30 से शुरू हो गई, 39 से खत्म हुई, 39 तो शुरू हो गई। इस तरह असीं अपने जो अलग अलग तरह के आंकड़े जोड़े उन्होंने बारे असीं जान लिया है। इसमें तुसीं चंगी तरह एक बार फिर आप रिवाइज करके वेख लेना है। तो हुण असीं आउंदे हां कि किस तरह असीं जिहड़ी औसत आ या एवरेज है पता करते हैं। तो सब तो पहला साडे कोल आंदा है मीन। मध्यमान, एवरेज, औसत। किस तरह पता करते हैं? इसलिए साडे कोल 3 तरह के डाटा असीं सीख चुके हैं, कितनी तरह के साडे कोल जिहड़े आंकड़े होंदे हैं। सो इसनूं करन तो पहला असीं इन्हां दे जिहड़े फार्मूलाज लगदे हैं उन्हां बारे असीं जिहड़ी आ वो जान लैंदे हां कि किहड़े-किहड़े फार्मूलाज लगदे हैं। फिर असीं अपने सवालों ते जिहड़ा आवांगे। सब तो पहला साडे कोल आंदा है डायरैक्ट मैथड, नंबर 2 शॉर्टकट मैथड, और अज्यूम्ड मीन मैथड। मीन मैथड तीसरे नंबर पे साडे को आंदा है स्टेप डेविएशन मैथड। इसनूं असीं बोलदे हैं प्रत्यक्ष विधि, इसनूं असीं बोलदे हैं काल्पनिक विधि, अज्यूम का मतलब होंदा है कोई चीज़ मान लेना काल्पनिक तौर पर, उस लिए आपां इसनूं कहंदे हैं काल्पनिक विधि। फिर साडे कोल आंदी है स्टेप डेविएशन, पग विचलन विधि। हुण असीं विधियां तो वेख लईआं ने तीनों मैथड, तो इन्हां दे असीं फार्मूलाज डिस्कस करते हैं। पहले का फार्मूला होंदा है मीन का, सानूं पता है किस तरह दर्शाउने आ असीं एक्स बार दे नाल, समेशन एक्स आई ओवर एफ आई। मतलब कि कितने आंकड़े साडे को दिते हैं उन्हां दा मतलब जोड़, इसका मतलब है साडे को आ जिहड़ा साइन असीं वरतिया है ये साडे को समेशन। इसनूं असीं जदों जोड़ करते हैं उदों वरतते हैं, जोड़ लई जां प्लस लई वरतिया, जोड़ लई वरतिया जाण वाला चिन्ह। काल्पनिक विधि इसकी होंदा साडे को एक्स दी बार ए प्लस समेशन एफ आई एक्स आई, सॉरी एफ आई डी आई ओवर साडे को आंदा है एफ आई। फिर साडे को आंदा है स्टेप डेविएशन ए प्लस
summation fi di dash over fi, summation fi ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ summation fi ਮਲਟੀਪਲਾਈ h। ਇਹ ਜਾਂ h ਜਾਂ fi di xi ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਵਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ डायरेक्ट मेथड कदों लगना है, शॉर्टकट मेथड कदों लगना है, या स्टेप डेविएशन मेथड कदों लगना है। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड सिर्फ साडे कोल कच्चे अंकड़े अते वर्गीकृत अंकड़े, इन्हां दे विच साडे कोल डायरेक्ट मैथड जिहड़ा लगदा है। जिस तरह दी पहला सब तो पहला अंकड़ियां नूं डिस्कस कीता, उस विच पहले अते दूजे नंबर वाले अंकड़े ही ਲਈ ही डायरेक्ट मैथड असीं लगाउंदे हां। नंबर 2 दूसरा मैथड साडे कोल अज्यूम्ड मीन मैथड। अज्यूम्ड मीन मैथड इस ये भी पहले अते दूसरी तरह के अंकड़ियां ते ही लगदा है। नंबर 3 फिर साडे कोल आंदा स्टेप डेविएशन मैथड। स्टेप डेविएशन मैथड एसडीएम डीएम एएम एसडीएम इस तरह को लगता है तीन तरह के जिहड़े अंकड़े पहली टाइप के, दूजी टाइप के ते तीसरी टाइप के। तीसरी टाइप के अंकड़े किहड़े सी साडे कोल वर्गीकृत अंकड़े। इन्हां गल्लां नूं ध्यान च रखना है क्योंकि इस सवाल करते वक्त साडे बहुत ही काम आउणगीਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਦੇਖ ਲਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ। मीडियन ਅਤੇ ਮੋਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 14.1 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ कि किन्ने पौधे जिहड़े आ वो किन्ने घरां दे विच लगे हुए हैं। इसनूं सब तो पहला असीं करना है एक स्तंभ के रूप में एक कॉलम बना के टेबल नूं बना लेना है। इत्थे असीं लिखदे हां पौधों की संख्या जां असीं लिखांगे क्लास इंटरवल जो साडे कोल दित्ती गई है 0 तो 2, 2 तो 4, 4 तो 6, 6 तो 8, 8 तो 10, 10 तो 12, 12 तो 14। इस एक कॉलम जी खाली रखते हैं ये साडे कोल घरां दी संख्या घरां दी संख्या की दित्ती हुई है 1 2 1 1 2 1 5 6 2 ते 3 जोड़ जां टोटल। ते पता करन सानू क्या है मध्यमान पता करो ਅਤੇ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ f ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ci ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ
मिड वैल्यू या वर्ग चिन्ह। इसको ਅਸੀਂ मिड वैल्यू या वर्ग चिन्ह कहते हैं, पता करांगे। इसमें ਅਸੀਂ ਕੀ लिखते हैं, छोटी एक्स एक्स आई भी लिख सकते हैं या ना भी लिखो कोई गल नहीं, फॉर्मूले च ਅਸੀਂ एक्स आई लिखा ही, पर तुम एक्स आई नहीं लिखोगे तो चलूगा। ये साडे को क्या होता है एल प्लस यू बटा 2। हुण एल की है तो यू की है, ये देखो क्लास इंटरवल है साडे को, इस दे विच जेहड़ियां खब्बे पासे वाली वैल्यूज होंगी साडे को राइट साइड ते लैफ्ट और राइट, ये साडे को सारियां एल होणगियां, साडे को यू होणगियां। एल का मतलब हेठली सीमा, लोअर लिमिट, यू का मतलब उपरली सीमा, अपर लिमिट। हुण एक्स फाइंड करने लई दोवां नूं जोड़दे हां, जोड़ के कितना भाग करदे हां 2 दे नाल। देखो 0 ते 2 नूं जोड़दे हां, 0 जमा 2 बटा 2 कितना आ गया 2 बटा 2, साडे कितना आ गया 1। फिर असीं 2 जमा 4 नूं जोड़ांगे, 2 जमा 4 बटा 2 कितना आ गया 6 बटा 2 बटा 3, 2 तीए 6। ये आया साडे कोल 1, फिर आया साडे कोल 3। हुण एक गल दा ध्यान रखना है कि असीं x जिहड़ी किस तरह फाइंड पता करनी है। इन्हां दे विच देखो साडे कोल किन्ने दा अंतर है 2 दा, 2 4 6 8 10 12, 2 2 दा ही जिहड़ा अंतर साडे कोल दित्ता गया है। इसलिए तुसीं पहली बार जो एक्स कढ़ लेंगे हाँ, दूसरी बारी जिन्ना साडे कोल अंतर होवे उन्ना ही जोड़ी जाना है। 1 जमा 2 3, 3 जमा 2 5, 5 जमा 2 7, 7 जमा 2 9, 9 जमा 2 11, 11 जमा 2 13। देखो 12 14 26, 13 दूना 26, 13 आ जाता है। फिर असी एक कॉलम होर जिहड़ा असी तैयार करते हैं। हुण असी करना है f अते x नूं असी गुणा करना है, f ਅਤੇ x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। एक गुणा एक 1, 3 गुणा 2 बराबर 6, 5 गुणा 1 बराबर 5, 7 गुणा 5 तो 50 35, 9 गुणा 6 9 6 54, 11 गुणा 2। पहाड़े बच्चे जो तुहानू चंगी तरह आने चाहिए हैं, जिस नाल कि साडा फिर सवाल करना सौखा हो जाता है। 11 दूना 22, 13 30 39। फिर अस लिखे जोड़ टोटल, टोटल किहदा करना है असी टोटल करना है। सब तो पहला असी एफ का समेशन एफ का जोड़ करते साडे को की आता है 2 ते 1 3, 3 1 4, 4 ते 5 9, 9 ते 6 15, 15 ते 2 17, 17 ते 3 20। जे तुसी अपनी स्टेटमेंट जिहड़ी देखदे हो उसदे विच सानू सिद्धा दित्ता होया कि 20 घरां दे विच जिहड़े पौधे आ वो लगे हुए हैं, तो उत्थों भी असीं देख सकते हैं कि किन्ने घर कहे हैं 20, तो असीं उत्थों भी 20 जिहड़ा टोटल अपना लिख सकते हैं। फिर एफ एक्स इसका असीं जोड़ करना है। सानू पता है कि जोड़ के लिए असीं किहड़ा चिन्ह वरतदे हां समेशन दा, समेशन एफ एक्स सिग्मा, सिग्मा भी बोलते हैं जिसनूं। हुण इसका जोड़ करते हैं 9 ते 2 11, 11 ते 4 15, 5 20 ते 5 25 ते 6 31 ते 1 32, 2 कितना आ गया साडे को 32, 2 लिखा गया, 3 साडे को हांसल आ जाता है। 3 तो 5 5 10, 10 ते 3 13, 13 ते 3 3 2 5 5 3 5 5 10, 10 3 13, 13 ते 3 16 कितना आ जाता है साडे को 162।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? देखो जो भी साडे कोल ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ डायरेक्ट मैथड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧੀਆਂ डायरेक्ट मैथड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ अवर्गीकृत होण। इसलिए इत्थे की अंकड़े साडे कोल छोटे दिते होण। देखो अंकड़े की है छोटे, सानू सिंगल डिजिट दे विच जिहड़ा एक जदों साडे कोल अंकड़े जिहड़े आ एक अंक वाली संख्या दे विच दिते होए तां असीं उदों समझ लेना है कि असीं डायरेक्ट मैथड जिहड़ा वो लगाना है। समेशन fx ओवर समेशन f x साडे कोल कितना 162 बटा b 2 10 20 दोवें संख्यावां जिस तरह लिखदी 2 नाल तुसीं कट सकदे आ। 2 8 16 ते 2 1 2। हुण साडे कोल आ गया 81 बटा 10। ये सानू पता है कि जो 10 नीचे आ गया साडे कोल तां असीं उपर तो सज्जे पासों एक संख्या छड्डांगे ते पॉइंट ला दांगे ते साडे कोल जिहड़ा आंसर आ वो निकल जाता है। इसका मतलब कि जे हर एक घर दे विच बराबर जिहड़े पौधे लगाए जाण तां किन्ने पौधे लगणगे? 8 पौधे लगणगे ते फिर एक किहड़ा पौधा वो बढ़ता जाएगा साडे कोल। इसलिए ये सीगा असीं किहड़े मैथड नाल कीता? डायरेक्ट मैथड दे नाल। हुण इस ही सवाल नूं जेकर असीं अपने अगले मैथड जिहड़ा साडे कोल काल्पनिक विधि सी अज्यूम्ड मैथड सी उस नाल करके वेखीए फिर असीं किस तरह करदे हां। सारा सवाल जिहड़ा इस तरह ही होना वा। ये स्टैप भी इस तरह रहूगा, ये स्टैप भी इस तरह रहूगा, ये भी रहूगा। मैथड जिहड़ा लगाना आपां assumed mean। काल्पनिक विधि उसके लिए असीं करना है ये जिहड़ा कॉलम बनाया इसमें असीं साफ कर देना है। साडे कोल इसदा फार्मूला की सी मीन बराबर a प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। साडे कोल की आया पहले फार्मूले ने इसनूं कंपेयर करदे आ। पहला साडे कोल की सीगा डायरेक्ट मैथड वाला, उस च सी साडे कोल समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। देखो चेंज की होया, एक साडे कोल a आई है वाधू ते दूसरा x की जगह ते की आ गया साडे कोल d आ जाता है। ਇਹਦਾ मतलब सानू दो चीज़ें चाहिए ने, एक a चाहिए है दूसरी d चाहिए है। d किस तरह पता करनी है? x माइनस a। हुण a की है साडे कोल? ये साडे कोल जिहड़ी भी साडे कोल x असीं बनानी है क्लास इंटरवल तो जिहड़ी असीं x बनानी है, जे तां x दित्ती हुई तां ठीक है उसनूं बनाउण दी लोड़ नहीं है। जे x बनानी पवे तां जो भी साडे कोल x बन गई उसदे लास्ट वाली जिहड़ी भी साडे कोल टर्म होई उसनूं असीं a मनना है। अखीर में जो दिता है उसनूं असीं a मनना है। ध्यान रखना है विचकार तो ना लो तो सब तो वधिया है। ये असीं a ले लिया। हुण असीं लिखते हैं फार्मूले दे नाल कट देवांगे। एक देखो x की है, ये सारे x आन ते इकल्ला ही किया a। 1 माइनस 13, 1 चों 13 घटाए साडे को आएगा माइनस का 12। देखो जो भी छोटी संख्या जो बड़ी संख्या घटाते हैं तो आपां जिहड़ा साइन है वो माइनस वाला यूज करते हैं। फिर साडे को आंदा 3 माइनस 13 माइनस 10। देखो किन्ने किन्ने का अंतर है साडे को 2 2 का सी, इस विच भी 2 2 का अंतर है। इत्थे असीं इस तरह घटा के 2 2 लिख लेना। माइनस 12 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 6 सॉरी माइनस 12 माइनस 10 हाँ जी हाँ जी ठीक है। माइनस 8 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 ते लास्ट में साडे को हमेशा 0 ही बचेगा क्योंकि लास्ट में की होगा 13 माइनस 13 होना है तो साडे को 0 आ जाना है। 8 किस तरह है साडे को 5 माइनस 13 7 माइनस 13 6 9 माइनस 13 माइनस 4 11 माइनस 13 माइनस 2। हुण असीं एफ डी पता करांगे, जिहड़ा साडे को एक एफ डी आंदा सी उसी पता करांगे। एफ डी की आंदा साडे को
देखो एफ ते डी गुणा करांगे 1 12 12 एकम 12 10 दूना 20 8 एकम 8 पंजो छिका 30 6 चौका 24 2 दूनी 4 नाल माइनस ही सारे माइनस लगा 3 0 0 लास्ट में साडे को इत्थे 0 ही आएगा जो भी तुसी लास्ट में जिहड़ा ए मान के चलोगे साडे कोल की आंदा है 8 तो 10 10 ते 4 14 ते 4 18 8 एक आंसर 3 2 5 6 7 ते 1 इस साइड में कहंदा 3 2 5 6 7 8 सही 12 1 12 10 2 ना 20 इत्थे साडे को 20 आना है साडे को की आ जाता है 98 समेशन एफ डी माइनस ते 98 क्योंकि सारी संख्यावां माइनस विच हन इसलिए साडे को हुण मीन की आएगा ए कितना है साडे को 13 प्लस एफ डी कितना है माइनस 98 बटा बी 13 ये तो प्लस माइनस इतने साडे को बनेगा माइनस हमेशा साडे को इस तरह ही बनेगा क्योंकि जो तुसी लास्ट वाले को ए मान के चलोगे ये आगा साडे को 98 बटा बी कटिंग आते 2 10 20 2 चौके 8 2 9 18 एक्स 13 माइनस 49 बटा 10 ये आगा साडे को 13 माइनस 4.9 माइनस करते हैं 13 4.9 इधर एक जीरो आप लगाते हैं 2 रह गए अपने को 10 बन गए 10 तो 9 माइनस किया 1.12 चो 4 8 तो आंसर देखो साडे को की आ गया दोनों मैथड के नाल सेम आया पहला भी 8.1 आया सी ते हुण भी आंसर साडे को 8.1 आता है सो इस तरह असीं अज की कीता है मीन कढ़ना सीखिया है ते मीन नूं किहड़े मैथड नाल सीखिया एक दा डायरेक्ट मैथड दे नाल सीखिया ते दूसरा असीं एक काल्पनिक विधि जां अलजेब्रिक मैथड दे नाल सीखिया है।